Good morning, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh, and I'm here with the new chapter Indigo, written by Louis Fisher. Actually, this chapter is an excerpt from the textbook The Life of a Mahatma Gandhi, this one, which is written by Mahatma Gandhi. This is biography which is written by Louis Fisher. So before I start with the chapter, just one proverb which is probably going to sum up the whole chapter is: justice that love gives is a surrender, and justice that law gives is a punishment. This is a famous quotation said by Mahatma Gandhi. So let us proceed on to Louis Fisher, who is the author of this excerpt. Louis Fisher is an American born journalist. Rather, he was an American born journalist who believed that Gandhi, who was born in 1869 and who died in 1948, was the greatest individual of the 20th century, if not the 20 centuries. So, उनके हिसाब से लुइस फिशर, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका में पैदा हुए, उनके हिसाब से गांधी जो हैं वो इस कंट्री के, इस देश के एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल की पदवी वो दे रहे हैं 20th सेंचुरी के. अगर पूरे 20 सेंचुरीज के नहीं तो कम से कम 20th सेंचुरी के तो वो ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल हैं. एंड इवन दो दिस मे हैव बीन द ओनली स्टेटमेंट ऑफ सब्जेक्टिविज्म, ही इंजेक्टेड इनटू हिज बायोग्राफी. मतलब उन्होंने जब उनकी बायोग्राफी लिखी तब इस चीज़ पर, इस स्टेटमेंट पर उन्होंने बहुत फोकस किया. ये स्टेटमेंट ही उनका कंटेंट था. और एक बार उनकी आप ये बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंसान के बारे में वो क्या सोचते थे. तो अब थोड़ा सा लुइस फिशर के बारे में. सो लुइस फिशर वॉज बोर्न इन फिलाडेल्फिया, पेनिसिल्वेनिया, US on 29th February 1896, and he died on 15th January 1970 in Princeton, New Jersey. As I've already told you, he was an American journalist, and among his works were a contribution to the ex-communist treaties, The God That Failed, 1949, A Life of Mahatma Gandhi, from which our chapter Indigo, that excerpt, has been taken. And this became the basis for the Academy Award winning film Gandhi, which was produced in 1982. As well as he has written A Life of Lenin, which won National Book Award in 1965 in history. So he is a man who was interested more towards writing biographies. So this American journalist was born on 29th February 1896, and he was the son of fish peddler who was born in which place? He was born in Philadelphia, which is in, you can say, Pennsylvania in US. And after studying at Philadelphia School of Pedagogy from 1914 to 1916, he became a school teacher. In 1938, Leon Trotsky described Fisher as a merchant of lies and as direct literary agent of Stalin. So these two names are to his credit. And now, so this man, Louis Fisher, you can see here is his photograph.
He has very beautifully in this chapter his journalistic experience allows him to refrain from a blind adoration of the man. मतलब ये कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, किसी इंसान के बारे में जाने बगैर उसको अडोर करने लगते हैं। तो इससे ही हमें तौबा करना है। हम बिल्कुल वर्शिप करें किसी इंसान की, लेकिन ये जानते हुए उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो, बल्कि इस बायोग्राफी में उन्होंने उनके कुछ फ्लॉज और वीकनेसेस भी उजागर किए हैं। अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि उन्होंने कुछ उनके फेशियल फीचर्स को अगली भी बताया है। तो खैर, डिस्क्रिप्शन जो गांधी का आउटवर्ड अपीयरेंस था, ना सिर्फ वो डिस्क्राइब करके उन्होंने बहुत ही विविडली, बहुत ही क्लियरली उनके इनवर्ड स्टेट ऑफ माइंड को भी पेंट किया है, डिस्क्राइब किया है, जिसको पढ़ने के बाद रीडर्स जो हैं दे आर फिल्ड विद लव एंड रेवरेंस फॉर दिस लिटिल मैन। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये कहानी है गांधी जी की, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जो चल रही थी, ही ओवर केम दिस, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, जहाँ पर उनको सेग्रीगेट किया जाता था रेसेस के आधार पर। अपने डिसाइपल्स के साथ पहला तो उनका मूवमेंट यही था, दूसरा ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पर भी गांधी जी शोड दैट ह्यूमन बींग्स that a life of peace is attainable if one manages to transcend their ego and desires। तो उन्होंने लोगों को ये साबित किया कि इंसान एक पीसफुल लाइफ लीड कर सकता है अगर वो ईगो और डिज़ायर्स को ट्रांसेंड कर ले, ठीक है। तो इसके अलावा और एक चीज़ और है जो कि बहुत ही सिंप्लीफाई करके लुइस ने इस बायोग्राफी के थ्रू हम तक पहुंचाई है, और उनका ये इंटीमेट नॉलेज ही था महात्मा जी के बारे में, दैट वाज कपल्ड विद हिज ल्यूसिड एंड सिंपल प्रोज। उन्होंने इस बायोग्राफी को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया दैट यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन। और इस बायोग्राफी में उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से ये बताया कि कैसे एक इंसान जो है, जिसका अनकॉन्क्वेरेबल स्पिरिट होता है मतलब महात्मा जी का, उन्होंने इंस्पायर किया एक पूरी ऐसी पॉपुलेशन को विच कैन हैव अ ट्रायम्फ ओवर टायरनी। किस तरीके से उन्होंने जीत पाई अपने डर पर, ब्रिटिशर्स पर, उस एक पर्टिकुलर चंक ऑफ क्लास पर जिन्होंने उनको इंडिगो प्लांटेशन के लिए मजबूर किया था। तो लेट अस सी, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द थीम ऑफ द जो चैप्टर की थीम है वो है द लीडरशिप शोन बाय महात्मा गांधी टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड पीपल थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। तो ये तो हो गया थीम कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से उनको न्याय दिलाया, स्पेशली उन ऑप्रेस्ड लोगों के लिए जो शेयर क्रॉपर्स थे उनके लिए, और जो फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, इनोसेंट थे, दे वर सो अफ्रेड। उनको कन्विंस किया, ज़बरदस्ती नहीं किया, आर्ग्यूमेंटेशन के आधार पर कुछ चीज़ें निगोशिएट की और लोग समझ गए, और उन्होंने खुद उस डर से छुटकारा पाया, उन लोगों से छुटकारा पाया। एक सब थीम भी है इस चैप्टर का, और सब थीम है द कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय एनोनिमस इंडियंस टू द फ्रीडम मूवमेंट। और साथ के साथ इस चंपारण एपिसोड ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट। सो दिस इज द सब थीम। चंपारण एपिसोड के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जा कर के डिटेल पढ़ सकते हैं, इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और ये चंपारण मूवमेंट के मैंने कुछ पिक्स उठाए हैं, आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी इन द सेंटर with the people all around, and then people he's addressing to people of Champaran. Then this is yes, this is the picture, and this is Champaran Satyagraha, all pics of that
time. You can see the Purbi Champaran. The whole story is coiled around चंपारण. ये पूरा पूर्वी चंपारण का मैप है, नक्शा है. आप देख सकते हैं नेपाल बॉर्डर्स के पास, नेपाल बॉर्डर्स की तराई इलाकों में. तो आप चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे. सो दिस इज पश्चिम चंपारण एंड दिस इज पूर्वी चंपारण. तो उन दिनों बिहार में को हमने एक प्रोविंस की तरह ट्रीट करते थे हम. इट वॉज नो मोर बिहार. देन ये आप इंडिगो को देख सकते हैं. इंडिगो के फ्लावर्स ऐसे होते हैं. इंडिगो यानी नील, जो आप कपड़ों में आपने, आई होप बच्चे जानते हैं इंडिगो क्या होता है. जो उजाला आप यूज़ करते हो, जो कलर आप यूज़ करते हो, इंडिगो यूज़ करते हो, उसके फ्लावर्स देखिए ऐसे होते हैं. ये चंपारण की स्थिति है. ठीक है, ये देख सकते हैं आप. यहाँ पर ये खेती हो रही है इंडिगो की. तो अब सबसे बड़ी इंडिगो प्रॉब्लम पर हम आते हैं, जहाँ पे जर्मनी ने जो है क्या डेवलप किया था. जर्मनी में डेवलप किया था एक ऐसा सिंथेटिक इंडिगो, और ये चूंकि एक कमर्शियल क्रॉप था, तो कमर्शियल क्रॉप को कट डाउन करने के लिए इन्होंने नेचुरल इंडिगो की बजाय सिंथेटिक इंडिगो डेवलप किया जर्मनी ने. अब ब्रिटिशर्स क्या कहने लगे, या तो भाई तुम ये इंडिगो लगाओ, और नहीं तो फिर कंपनसेशन दो. अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आज़ाद करें तो तुम कंपनसेशन दो 15% ऑफ द इंडिगोज हार्वेस्ट. ठीक है. उसके बाद से इंडियन के जो शेयर क्रॉपर्स थे, उन्होंने जब सिंथेटिक इंडिगो के बारे में उनको पता चला, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ये फसल तो नहीं लगाएंगे, हमें हमारा पैसा वापस चाहिए. और कोर्ट्स भी गए वो, यानी कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटे. तो थोड़ा सा और सत्याग्रह के बारे में कि किस तरीके से 18 अप्रैल 1917 में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया गया रीज़न का कि भाई ही हैज़ नॉट ओबेड द ऑर्डर एंड ये कुछ डेट्स हैं आपको ध्यान रखनी. जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो, हालांकि आपके चैप्टर से कुछ ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट आई थॉट आई विल जस्ट गिव दिस टू दोज चिल्ड्रन हू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग हिस्ट्री एज देयर सब्जेक्ट. सो 18 अप्रैल एंड 19 अप्रैल इतना काफ़ी है. आगे फिर 20 अप्रैल को क्या हुआ, 10 जून को क्या हुआ, ये डिटेल में है. यहाँ पर आप लिंक में देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी दिस. उसके बाद से हम आते हैं स्टोरी, हमारी मेन स्टोरी जो है, अब उस पर फोकस करते हैं. जो मेन स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग, राजकुमार शुक्ला अप्रीज्ड गांधी जी ऑफ इनजस्टिस ऑफ द लैंड ऑफ सिस्टम इन बिहार. उन्होंने बताया, उनकी इनिशिएटिव थी ये, कि बिहार में जिस तरीके का लैंड लॉर्ड सिस्टम चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाया उन्होंने. राजकुमार शुक्ला खुद एक शेयर क्रॉपर थे, खुद एक विक्टिम थे. गांधी इतने बिजी थे, उसके बावजूद राजकुमार शुक्ला उनको फॉलो करते रहे जब तक उन्होंने चंपारण विजिट करने का प्रॉमिस नहीं कर दिया. और उसके बाद से एक चीज़ और बहुत ध्यान देने वाली है कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर जा रहे थे तो रास्ते में वो राजेंद्र प्रसाद के घर भी गए पटना में. और उसके बाद से ही मेट JV कृपलानी. पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हासिल की चंपारण में चल क्या रहा है. फिर कई एडवोकेट से भी मिलने मुजफ्फरपुर में. दिस स्पेलिंग विल बी MUZA. आई एम सॉरी, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग. MUZZA, मुजफ्फरपुर. एंड वेर ही मेट एडवोकेट्स. उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह लताड़ा, डांटा, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये इनोसेंट और गरीब फार्मर से इतना अमाउंट लेना वो सही नहीं है टू प्रेजेंट केस इन द कोर्ट्स. और ये शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो है इन फार्मर्स को ऑप्रेस कर रही थी. तो पूरा ये डिटेल में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में. उसके बाद से किस तरीके से सिंथेटिक इंडिगो आया जर्मनी में, और यहाँ भारत में भी वो मजबूर करने लगे, और नहीं तो फिर तुम भाई मनी पैसा दो. तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने जो मनी एक्सटॉर्ट की पेजेंट से, उसके बारे में है. गांधी जी जब चंपारण आ गए तो वो किस तरीके से तिरहट डिवीज़न के कमिश्नर से मिले, उसके बाद से लैंडलॉर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव से मिले, काफ़ी बातचीत हुई.
उनकी क्लैशेस भी हुई पुलिस सुपरिटेंडेंट से, और उसके बाद उन्हें समन किया गया कोर्ट में, जहाँ उन्होंने प्ली की। उन्होंने कहा भाई मैं आई हैव डिसोबेड द ऑर्डर इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और बहुत चालाकी से, खूबसूरती से उन्होंने अपने ऊपर से वो इल्ज़ाम हटवा लिया। उसके बाद से हज़ारों पेजेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन, दिस इज़ हाईलाइट ऑफ द चैप्टर, जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल हेल्पलेस थी और उन्हें गांधी जी से ही मदद मिली, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि पेजेंट्स जो है वो जेल भरो आंदोलन पर काम कर रहे हैं और लॉयर्स की मदद से। तो खैर ब्रिटिशर्स ने ये केस ड्रॉप करना पड़ा उनको, और अल्टीमेटली ये जो बैटल था चंपारण का, वी वन इट, हम जीत गए। तो उनका ये तो हो गया हमारा, आई एम सॉरी 10th पॉइंट एक बार दोबारा दिख गया है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो टिल हियर इट इज़ देयर। एंड उसके बाद से थोड़ा सा और है कि जो रिपोर्ट हुई ऑफिशियल कमीशन इंक्वायरी की, ये उनकी नेगोशिएशंस ही थी कमिश्नर के साथ, जिसकी वजह से ये इंक्वायरी संभव हो पाई। उसकी रिपोर्ट आई, उसके बाद से 25% मनी का रिफ़ंड होना, लैंडलॉर्ड्स ने सरेंडर किया, पेजेंट्स ने वापस से दे लर्न टू थिंग, ना सिर्फ उनकी ज़मीनें वापस आ गई उनके कब्ज़े में, बल्कि दे हैड गेन करेज, दे लर्न हाउ टू डिफेंड एंड व्हाट आर देयर राइट्स। तो सोशल वर्क, हेल्थ, एजुकेशन, क्लिनलीनेस, ये विलेज में इसकी कंडीशन देख रहे थे गांधी जी, और उन्होंने एड्रेस किया इन प्रॉब्लम्स को, उसके ऊपर भी काम किया। तो चंपारण एपिसोड गांधी जी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बना। उसके बाद से उन्होंने लोगों में ना सिर्फ इस शेयर क्रॉपिंग को लेकर, इंडिगो प्लांटेशन को लेकर एक मूवमेंट इनिशिएट किया, बल्कि उन्होंने एक लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंस का एक पार्ट पढ़ाया उन्होंने, स्पेशली इंडियन फार्मर्स और उन लॉयर्स के मन में। अब जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो ये एक थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप देखें कि अगर पहला सत्याग्रह कहा जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा इनिशिएट किया गया और चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। तो आप इस डिटेल को आप देख सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाता, बट ये तो पूछ सकते हैं ना कि सत्याग्रह मूवमेंट था क्या, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी, और ये बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिनके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। ब्लू रेबेलियन, जिसको कि ये इंडिगो, ब्लू रेबेलियन इंडिगो से रिलेटेड है, ठीक है ना। और बहुत डिटेल में ना पढ़ते हुए, ये गांधी जी के वाइफ कस्तूरबा गांधी, और व्हेन ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 13 टू हर, उनके 4 बेटे, ये आप देखिए, ये मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। द ग्रेट मैन हु इनिशिएटेड दिस इनजस्टिस डन टू शेयर क्रॉपर्स, ही इज़ राजकुमार शुक्ला, और इनके ऑनर में ये पोस्टल स्टैम्प इंडिया में जारी किया गया था। ये चंपारण एपिसोड का देख लीजिए, ये भी एक पोस्टल स्टैम्प था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी जी को, उसके बाद महात्मा गांधी जी को, और ऊपर देख लीजिए इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का सीन है, इंडिगो प्लांटेशन का। तो ये भी एक चेंज है। तो आई होप आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फॉर द चेंजेस फॉर द बेटर, for line-to-line explanation of the chapter. So bye-bye children. Thank you so much. God bless you all. Yeah.